Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Session 19, TERI 9 and ERP 9, Excise Voucher Type. Topics to be covered: creating excise voucher type, creating tariff classification, HSN code, creating tariff classification, creating excise voucher type. Now in this session we were actually going to cover about the creating on the vouchers, excise voucher. इसीलिए हम excise voucher के अंदर सबसे पहले voucher create करने वाले हैं purchase voucher type का, because अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग excise पर काम करते हैं, उसे कैसे enable करते हैं. So first voucher is what? Purchase voucher type. So now the first thing is what? Excise purchase. We have to put down the type of voucher, that is purchase. Arbitration was this. Method of voucher numbering automatic. Use advanced configurations no. But you have to change this part. Use of excise, put yes. Default excise unit ABC company. आपको यहाँ पर enable करना पड़ता है excise का जब आप किसी भी तरीके का voucher type creation कर रहे हैं. तो इस voucher type creation में सबसे पहले हमने creation की है purchase voucher की. So now जब आप इसको enable कर देते हैं, that means you put yes for that. आप उसके बाद press Y for accept all the details. Then second voucher you have to create is the sales voucher type. Sales voucher type में भी बिल्कुल same उसी तरीके से होगा. That means हम सबसे पहले उसको name देंगे excise sale. Excise sale का नाम देने के बाद हमें use of excise को automatic करना पड़ेगा. That means we have to put the yes on that and the company name and then accepting it. Third voucher is going to create it on the debit note voucher type. That means हम जब किसी भी तरीके का debit note बना रहे हैं, so debit note voucher type में भी the same as excise debit note, हम लोग यहाँ पर excise को yes करेंगे. Now manufacturer general voucher, this is what the another voucher जो कि हम create करेंगे. Now what is manufacturer general voucher? It is what used to account the issue of raw material to the production floor and for the receipt of goods. Now this is what the main thing to be considered in tally. Tally के अंदर main जो चीज़ है consider करने वाली, अब ये manufacturing journal है, क्योंकि manufacturing journal दो तरीके से बनते हैं, एक production floor पर और एक finished goods पर. So हम जब सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे तो वो प्रोडक्शन फ्लोर का बनाएंगे जब एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही होती है. दूसरा जो बनेगा वो बनेगा फिनिश गुड्स पर. सो दैट इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर. कैसे क्रिएट होगा? आपको वाउचर टाइप में जाना है, देन उसे नेम देना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल का. मैन्युफैक्चरिंग का जनरल नेम देने के बाद टाइप ऑफ वाउचर इज टॉप जर्नल. देन use the effective date of voucher no, use the optimal as default no, use the common iteration yes and use the manufacturing journal yes. So you have to put yes. हाँ, आपको print चाहिए after saving, you can put the yes or no in that case, but this is what the things which you have to enable it, and then finally Y for accepting that. Now another is what? Creating a tariff classification. जब किसी भी तरीके की हम जब एक्साइज को लागू करते हैं या एक्साइज को जब यूज करते हैं, सो इन दैट केस हमें टेरिफ क्लासिफिकेशंस को भी कंसीडर करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज टेरिफ? टेरिफ इज व्हाट? द टैक्स रेट. जितने भी हमारा रेट टैक्स रेट होते हैं वो हमारे टेरिफ्स होते हैं. सो ईच एंड एवरी गुड मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड हैव टू बी क्लासिफाइड फॉर फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल. जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो भी गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं, दे हैव टू बी क्लासिफाइड. उनको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, ताकि उस पे हम ड्यूटी रेट्स को एप्लीकेबल कर सके. दैट इज व्हाट. बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैटेगरी डिवाइड करते हैं गुड्स की और उसके अकॉर्डिंगली उस पर रेट लगाते हैं. एक्साइज सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के हिसाब से, विच इज 1985, दैट क्लासिफाइज ऑल द गुड्स अंडर द 91 चैप्टर एंड स्पेसिफाई द कोड एज असाइंड टू ईच आइटम. यानी कि चैप्टर 91 के अंदर हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफाइड कोड है और हर एक प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन वहां पर है. जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेवरेज. अगर बेवरेज है तो बेवरेज का एक स्पेसिफाइड कोड है और उसका अपना एक स्पेसिफाइड असाइंड नंबर, उसकी क्लासिफिकेशन है. बेवरेज इज व्हाट? अ क्लासिफिकेशन जिसके अंदर सारे लिक्विड्स आ गए, सो उसका एक अपना स्पेसिफिक कोड हो गया. वो जो कोड होता है, दैट कोड इज कम दैट्स द टैरिफ क्लासिफिकेशन कोड. ये टैरिफ क्लासिफिकेशन कोड जो होता है ये 8 डिजिट का होता है.
जिसमें से पहली 4 डिजिट जो होती हैं वो चैप्टर एंड हेडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, बाद की 2 जो होती हैं वो सब हेडिंग को रिप्रेजेंट करती हैं, और उसके बाद की जो होती हैं वो उसकी सब हेडिंग्स को, दैट इज सब हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं. दैट इज व्हाट द क्रिएटिंग अ टैरिफ क्लासिफिकेशन. इसी क्रिएटिव क्रेडिट क्लासिफिकेशंस के बाद आता है HSN कोड. HSN कोड क्या होता है? दैट इज हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, जिसको हम HS बोलते हैं. कि ये जितनी एक पूरा एक कोडिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग पूरी कमोडिटी की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि पूरी कमोडिटी क्या है, किस तरीके की वो कमोडिटी है. ऑफ अ टैरिफ नॉमेनक्लेचर पॉपुलरली नोन एज, तो इसको जो पॉपुलरली नोन एज किया जाता है दैट इज व्हाट हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. बट वैसे इट इज व्हाट DHS, दैट इज हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम, जो कि एक नॉमेनक्लेचर की तरह यूज होता है. तो दैट इज राइट HSN. So it is internationally standardized system of name and number of classifying the trade product. तो ये दैट्स वेरी ऑब्वियस, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज आइटम होती है ये, मतलब एक स्टैंडर्डाइज नंबर और नेम होता है एक प्रोडक्ट का जो कि ट्रेड करते वक्त डिफाइन होता है. एंड येट यस इट इज मेंटेन बाय वर्ल्ड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से ये मेंटेन किया जाता है. नाउ जब किसी भी तरीके की हम टैरिफ क्लासिफिकेशंस करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस कोड को जनरेट करना, क्योंकि दैट इज व्हाट कि एक तो आप एक स्टैंडर्डाइज नेम दे रहे हैं और उसके बाद आप उसको एक कैटेगरी बिलो में दे देते हैं कि हाँ उस कैटेगरी में उस क्लासिफिकेशन में आते ही उस पर इतना रेट लग जाएगा. सो दैट कम्स इनटू द थिंग्स. इसीलिए अब हम लोग 1 बाय 1 इस पर एक टैरिफ क्लासिफिकेशन लगा रहे हैं. सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल्स पर. प्लास्टिक बॉटल, दिस इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉटल्स, वाटर बॉटल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जब किस तरीके की टैरिफ क्लासिफिकेशंस करती है तो वो कैसे करेगी. सबसे पहले एक वाउचर टैरिफ क्लासिफिकेशन क्रिएशन में जाकर वो सबसे पहले बनाएगी नेम अ प्लास्टिक बॉटल. प्लास्टिक बॉटल में जाके HSN कोड डिफाइन करेगी. देन यूज ऑफ एक्साइज, यूज फॉर एक्साइज के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं. एंड देन फाइनली यू एक्सेप्ट इट. सो यू हैव टू जनरेट दिस कोड ओनली. आपको सिर्फ ये कोड जनरेट करना होता है एंड देन एक्सेप्ट इट. अनदर इज प्लास्टिक बॉटल कैप्स. नाउ कैप के लिए पेट, इसका नाम देंगे पेट बॉटल कैप. कोड इज 39235010. एक्साइज के लिए एक्सेप्टेड. देन यू हैव टू क्रिएट टैरिफ क्लासिफिकेशन फॉर वाटर. नाउ सो वाटर ये उसका कोड नंबर हो गया एंड एक्साइज के लिए. देन फाइनली एक्सेप्टेड. देन लीनियर लोअर डेंसिटी पॉलीथीनल, दैट इज व्हाट LLDPE. इसके लिए भी आप एक पूरा टैरिफ क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज 39011101 और एक्सेप्टेड. सो दिस इज व्हाट कि जब एक वाटर बॉटल बनानी है तो उस केस में हमें जिस जिस चीजों की जरूरत पड़ रही है हमने उसका एक टैरिफ क्लासिफिकेशन क्रिएशन बना के उसका SN कोड जनरेट कर लिया. नाउ अराइजेस ऑन द रॉ मटेरियल. जब एक पूरा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो हमेशा प्रोडक्ट कंपनी में सबसे पहले रॉ मटेरियल्स आते हैं, यानी कि अब हमें उन रॉ मटेरियल्स पे ट्रांजैक्शंस करनी है. मैंने सबसे पहले एक पेट बॉटल ली 1 लीटर की, यानी कि दिस इज व्हाट माय फर्स्ट रॉ मटेरियल 1 बॉटल. नाउ सबसे पहले पेट बॉटल 1 लीटर. मुझे स्टॉक आइटम ऑल्टरेशंस करनी है बिकॉज इट इज व्हाट द स्टॉक आइटम व्हिच आई हैव टू मेंशन फॉर माय कंपनी. सो पेट बॉटल 1 लीटर. अंडर प्राइमरी यूनिट इज U, alternative unit is kg. So that is 1 kg is equals to 100 U. Then on the tariff classification आपने क्या लिखा? प्लास्टिक बॉटल. आपने वहां पे इसका नाम दिया प्लास्टिक बॉटल और आपने बोला set and alter the excise detail. Yes, you have to say yes for that. तभी इसकी enabling के बाद हमारी next transactions होंगी. That is what excise detail for PET bottle 1 liter. टैरिफ क्लासिफिकेशन प्लास्टिक बॉटल इज, एक्साइज यूनिट नेम क्या है? ABC कंपनी. रिपोर्टिंग UMO इज kg. कन्वर्जन U में था तो दैट इज 100 U. सेट ऑल्टर ऑफ द ड्यूटीज डिटेल. पर यहाँ पर सबसे पहले जब आप 100 U पे दोगे तो 100 U में आपको यहाँ पूरे एक रेट्स की विंडो खुल के आएगी. दैट इज व्हाट पेट बॉटल. एड वॉल्यूम, दैट इज व्हाट आप जब इनको परसेंटेज बेसिस पर जब आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसकी ये टाइप ऑफ ड्यूटीज मेंशन कर दी जाएंगी. देन यू हैव टू सेट दिस यस. और स्टॉक आइटम में क्या होगा? अदर्स. इट्स नॉट कैपिटल, इट्स नॉट फिनिश्ड, इट्स अदर.
नाउ पेट बॉटल 1 लीटर, पूरी ट्रांजैक्शन आपने यहाँ कर दी, बस यहाँ पर आपको एंट्री देनी है रेट ऑफ वैट। रेट ऑफ वैट आप लगा रहे हैं 4%, सो दैट कम्स इनटू 4% और आप इसे एक्सेप्ट करवा देंगे वाई। तो आपके स्टॉक आइटम में सबसे पहला अकाउंट जो रॉ मटेरियल का खुला दैट इज पेट बॉटल 1 लीटर की। उसके बाद क्रिएटिंग अ स्टॉक आइटम रॉ मटेरियल वाटर कंटेनर 20 लीटर्स। अब हमें वाटर कंटेनर पे बनाना है। अब 1 लीटर की बॉटल है तो 20 लीटर्स की भी बॉटल एक कंपनी प्रोड्यूस करेगी, तो उसके रॉ मटेरियल पर अब किस तरीके की ट्रांजैक्शंस होंगी। अगेन सेम, वाटर कंटेनर 20 लीटर आप बनाएंगे, यूनिट उसका यू ही रहेगा, ऑल्टरनेटिव यूनिट उसका केजी रहेगा। ऑल्टरनेट यूनिट इज ऑलवेज द मेन यूनिट, की इसका कन्वर्जन यू में था। नाउ 1 kg इज इक्वल टू 20 यू। नाउ अगेन यू हैव टू सेट येस फॉर दैट। फिर उसके बाद सेम ट्रांजैक्शन एड वॉल्यूम। अब यहां पर भी हमने इसको एड वॉल्यूम में, मतलब जो कंटेनर था 20 लीटर का, उसको भी हम लोग किस बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, वी वर कैलकुलेटिंग इट ऑन द परसेंटेज बेसिस। देन पूरी हमारे टाइप ऑफ ड्यूटीज और रेट ऑफ ड्यूटी पर आ जाएगा। देन फाइनली वी वर्क ऑन द अदर्स। वाटर कंटेनर को हम यस कर देंगे। अनदर इज बॉटल कैप। कैप बनाना है केजी बेसिस पर एंड दैट कम्स इनटू 1 kg में 500 यूनिट्स आएंगे। सो सेट ऑल्टर यस, द सेम पिक्चर्स अराइज। आपने यहां पर भी इसको यस करना है, फिर उसको परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट करना है, आपको ये बताना है। यहां से इसके सारे टैक्सेस आ जाएंगे, जो कि दिस इज व्हाट द सेम प्रोसेस जो कि हमने सबसे पहले एक पेट 1 लीटर की जब बॉटल में जो रॉ मटेरियल आया था उस पर किया था। एंड देन यू पुट अ वाई फॉर yes it. Then lower density polyethylene. So in that case this is what now kg 1 kg में this is 100 use 100 units 1000 units आएंगे. And then classification you have to say yes for the excise. Finally the same process will be go through, same वही process चलेगा. हम लोग इसकी कैटेगरी देंगे अदर्स में. देन नेचुरल वाटर, क्योंकि वाटर भी एक रॉ मटेरियल होगा जिस पर कंपनी खर्चा कर रही है, जिसमें यूज करेगी उसको, तो दैट इज वाइट नेचुरल वाटर कम्स इनटू इट. नेचुरल वाटर के अंदर इट्स अ प्राइमरी, ऑल्टर यूनिट नॉट एप्लीकेबल. सिर्फ लीटर में हमने कैलकुलेट किया है कि यूनिट ही इसकी लीटर में है, ऑल्टरनेटिव इसका कुछ नहीं है. टेरिफ क्लासिफिकेशन वाटर है, हम लोग एक्साइज लगाना चाहते हैं, वी पुट येस फॉर दैट. अगेन येस करेंगे डिटेल्स को. इसमें भी हम लोग इसको एड वॉल्यूम बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे. देन फाइनली इस कैलकुलेशन के बाद नाउ लिस्ट ऑफ द आइटम, इट इज अ प्रिंसिपल इनपुट. नाउ व्हाई इट इज प्रिंसिपल, क्योंकि इट्स अ मेन इनपुट. आप जब एक इनपुट बना रहे हैं, वाटर बॉटल अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर वाटर होना जरूरी, दैट इज व्हाई इट्स अ प्रिंसिपल. तो आप उसको प्रिंसिपल इनपुट में डालेंगे. एंड देन पुट वाई फॉर एक्सेप्टिंग ऑल द फंक्शंस. इस पे रेट टैक्स 0 है. नाउ क्रिएटिंग द स्टॉक आइटम ऑन द फिनिश गुड्स. जहां पर हमने ये डिसाइड किया था कि जब मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनता है तो 2 में बनेगा. एक जो प्रोडक्शन करते वक्त आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, दूसरा आपका जो फिनिश गुड्स जो बन के आ रहे हैं. सो फिनिश गुड्स जब बनेंगे तो इसमें सबसे पहले होगा एक्वा प्योर 1 लीटर. नाउ दिस इज व्हाट द फुल फ्लेज्ड 1 लीटर की बॉटल. क्या क्या है इसमें? नेचुरल वाटर है 1 लीटर का. अब ये कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर बताने हैं. दीज ऑल आर कंपोनेंट, ये तीनों चीजें इसकी कंपोनेंट है. 1 लीटर पेट बॉटल एक ही है, मतलब हमारा जो यूनिट्स 1 kg के अंदर जितने भी यूनिट आए थे उसमें से 1 यूनिट गया. बॉटल कैप इज 1 यूनिट अगेन. नाउ एक्वा प्योर 1 लीटर प्राइमरी, इट्स लीटर. ऑल्टरनेटिव यूनिट हम देंगे बॉक्स. अब 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 24 लीटर्स. नाउ सेट अ कंपोनेंट्स, वी सेड यस एंड यस, हम एक्साइज को यस करेंगे. दिस इज व्हाट द सेम फंक्शन. अब इसको कैलकुलेट किससे करेंगे? इट्स व्हाट, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. नाउ अब ये पूरा फिनिश गुड्स है हमारा, इसलिए हम इसको एमआरपी बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे. मतलब यहाँ पर हम अपनी एमआरपी बेस कैलकुलेशन लेंगे. एमआरपी बेस कैलकुलेशन में एबर्टमेंट होता है छूट. दैट मीन्स कितना आपको अलाउ है, मतलब रियायत काइंड ऑफ. सो वो 48%. और उसके बाद बेसिक ड्यूटीज, मतलब टाइप ऑफ ड्यूटी एंड रेट ऑफ ड्यूटी. इस ड्यूटी के बाद दिस इज व्हाट लिस्ट ऑफ फिनिश गुड्स. अब हम इसको किस गुड्स में डालेंगे? फिनिश गुड्स के अंदर डालेंगे. फिनिश गुड्स के बाद ये हम लोगों ने एक आइटम स्टॉक बना लिया फिनिश गुड्स का,
जो एक्वा प्योर 1 लीटर था, तो वी पुट इट यस। बट यहाँ पर हाँ हम लोग वैट भी बताएंगे 12.5 जो हमारा एक नॉर्मल वैट लगता है, दैट वो हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। फिर एक्वा मिनी 20 ml लीटर, दैट इज व्हाट द 20 ml 200 ml में सबसे पहले द सेम units and liters. Now this is what that comes into to getting the understanding about. Now अब इसमें क्या करेंगे, ये जो एक्वा मिनी लीटर 20 का था 200 ml का, इसमें यूनिट लेंगे, ऑल्टर हमने लिया लीटर बेसिस पर। Now set component yes, फिर टेरिफ क्लासिफिकेशन देंगे, पर जब हम इसको यूनिट्स को yes करेंगे तो यहाँ पर हमें बताना है कि लोअर डेंसिटी पॉलिटिक जो कि 5U होगा हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग yes करेंगे, देन अगेन द सेम प्रोसेस। अब इसको क्वांटम बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि क्वांटिटी बेसिस पर। नाउ दैट इज व्हाट कम्स इनटू ऑल पर लीटर। ड्यूटी जो लग रही है वो हमारी अब पर लीटर बेसिस पे लग रही है। देन लिस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, देन वी सेड वाई फॉर एक्सेप्टिंग इट। अब हमें बनाना है एक्वा किंग 20 लीटर पर। 20 लीटर के आइटम पे यस दैट्स द सेम प्रोसेस। पहले हम स्टॉक आइटम क्रिएशंस पे जाएंगे, एक्वा किंग 20 लीटर्स को ऐड ऑन करेंगे, उसमें प्राइमरी अंडर प्राइमरी कैटेगरी लिखेंगे, यूनिट उसका यू देंगे, ऑल्टरनेट यूनिट उसका एल देंगे, जो कि और उसके बाद हम लोग यस कर देंगे, दैट सेट कंपोनेंट्स को यस करेंगे। फिर ये विंडो खुल के आएगी जिसमें हम ये देंगे कि नेचुरल वाटर इसके अंदर 20 लीटर होगा और वाटर कंटेनर 20 लीटर का है, तो दिट इज 1U, यानी कि जो कंटेनर है बड़ा वाला वो 1 यूनिट लग रही है। ये देने के बाद हमें यहाँ पर यस करना पड़ेगा इसको, सेट जो हमने एक्साइज डिटेल थे, इसको यस करने के बाद अगेन सेम ये विंडो खुल के आएगी, टैरिफ क्लासिफिकेशन की एक्साइज डिटेल होगी ये हमारी, और इसकी एंट्री के बाद हम स्टेट अवे इसको वैल्यू बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। हम ये बताएंगे उसको कि ये परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट होगा ना, और फिर यहाँ पे सारी डिटेल हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारी परसेंटेज लगी आ जाएंगे, एक्साइज ड्यूटी परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट हो रही है। और अब ये फिनिश गुड्स है, बट एंड देन वी एक्सेप्टेड वाई, पर यहाँ पर हमें रेट भी बताना पड़ेगा 12.5% उसका टोटल रेट, एंड देन वाई। एक्वा इज 20 लीटर अगेन, इस केस में भी सेम उसी तरीके से जो 20 एक्वा किंग 20 लीटर पे चल रहे थे हम, ऐसे ही एक्वा ईस्ट 20 लीटर पर चलेंगे। अगेन यहाँ पर बॉटल कैप है 1U, सेम वही प्रोसेस है, सारी चीजों को यस करके, डिटेल को यस करके, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी एंड वैल्यू परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट किया आपने पूरी ड्यूटीज को। परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट करने के बाद फिनिश गुड्स बताया इसे, एंड देन पुट वाई फॉर दैट, और 12.50% आपको यहाँ पे वैट दिखाना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज व्हाट, जहां पर हम किस तरीके से टेरिफ को अवेल करते हैं, किस तरीके से टेरिफ लगता है, ये बताया गया। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चन व्हिच यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सबसे पहला है व्हाट इज एक्साइज वाउचर। एक्साइज वाउचर क्या होता है? एक्साइज वाउचर इज बेसिकली जब आप किसी भी तरीके के वाउचर्स क्रिएट करते हो, अपनी परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, जिसपे आप एक्साइज लगाते हो, दैट इज ऑल कम्स इनटू एक्साइज वाउचर। देन व्हाट डू यू मीन बाय द HSN सिस्टम और हाउ इट इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द एक्साइज ड्यूटी। HSN सिस्टम होता था हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। सो इन दैट केस दैट इज व्हाट हाउ इट इज हेल्पफुल, और ये हेल्पफुल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमें ये कोड प्रोवाइड करवाता है, एंड इट इज अ कोड जो कि यूज होता है हमारे आइटम्स को, हमारे प्रोडक्ट को क्लासिफाई करने में, और उस क्लासिफिकेशन से एक प्रॉपर प्रोडक्ट आता है, राइट। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट, और वी कैन से दैट दिस इज व्हाट दी एक वाउचर क्रिएशन, वाउचर टाइप, और किस तरीके की हम टेरिफ को यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज सेशन। वी आर वाइंडिंग अप हियर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग, वी लर्न।